Question number 3, exercise 13.2. Let's start from question number 3 today. So here we have given a table, number of spokes and angle between a pair of consecutive spokes. दो spokes के बीच का angle. ठीक है, it's given like 490. If the number of spokes are 6, then the angle is 60 degree. If the number of spokes are 8, 10 and 12, then you have to find out angle. So here we have given Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of the consecutive spokes are equal. जिससे आपके पास स्पॉक्स की एक व्हील के अंदर स्पॉक्स गिवन है, जितने भी सब स्पॉक्स ले लीजिए, ठीक है, तो उसके बीच में जो एंगल्स है ना, द ऑल एंगल्स आर इक्वल. लाइक इफ आई टेक 4 एंगल्स, then this 4 are equal. 4 spokes, sorry. If I take 6 spokes, then it will be like this 1 2 3. जहाँ पे सबके एंगल, और 4 ले लीजिए, तो जहाँ पे सबके एंगल जो हैं आपके पास इक्वल है, कंसेक्यूटिव बिटवीन वाले जो एंगल्स हैं वो इक्वल है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 स्पॉक्स हो गए, 1 2 3 4. हियर यू हैव 8. ठीक है, सो इस तरह से आपको, और सबके बीच के एंगल सेम है. एंड डेफिनेटली एंगल विल बी डिवाइडेड इन 360, क्योंकि आपके पास कंप्लीट एंगल 360 होता है. अगर नंबर ऑफ स्पॉक्स 4 हैं तो डेफिनेटली इट विल बी 90 90 90 एंड 90. ठीक है, so if you have 8 spokes, then angle will be divided in 8, that will be 45. 45 360 divided by 8, तो सभी एंगल्स 45 के हो जाएंगे, like this. ठीक है, तो हमें ऐसे करना है. So here you have to tell when the number of 8 spokes, then definitely the angle will be 45 degree. 360 degree divided by 8. When it is 10, number of spokes are 10, तो आपके पास एंगल हो जाएगा 360 degree divided by 10, 36 degree. 360 degree divided by 12, 30 degree. This is your answer. After this, we are having some questions on the basis of it. इसी टेबल के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. First is given question is, are the number of spokes and the angles found between the pairs of consecutive spokes in inverse proportion? Angles and the number of spokes, are there in inverse proportion? So yes, जैसे जैसे आपके एंगल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ स्पॉक्स इंक्रीज हो रहे हैं, एंगल्स डिक्रीज हो रहे हैं, एंड इन द सेम प्रोपोर्शन. सेम प्रोपोर्शन कैसे देखो, 4 into 90 360, 6 into 60 360, 8 into 45 360, like this. That means yes, they are in inverse proportion. Second part, calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. अगर आपके पास spokes 15 हैं तो आपको angle find out करना है. Let's take you can take it as x also. Directly you can fill it by dividing it by 15. 360 को 15 से divide करके. And you are to tell how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 degree. अगर एंगल 40 डिग्री है तो आपके पास नंबर ऑफ स्पॉक्स कितने होंगे, तो भी आप डिवाइड करके देखेंगे. 360 डिग्री को आप 40 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ स्पॉक्स हियर, राइट. सो व्हेन देयर आर 15 spokes, then it will be 24 degree, and when the angle is 40 degree, then it will be 9. Number of spokes will be 9. Next question, question number 4 is, if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. ठीक है, एक बॉक्स ऑफ स्वीट्स है, अगर उसमें 24 चिल्ड्रन है, सो दैट मीन्स वी हैव गिवन चिल्ड्रन एंड स्वीट्स. Firstly, we will make the table. ठीक है, if there are 24 children, ठीक है, then they will get 5 sweets each. तो हर एक स्टूडेंट को पर चाइल्ड कितनी मिलेंगी, 5 स्वीट्स मिलेंगी.
Now, how many individual, how many would each get if the number of children is reduced by 4? अगर number of children 4 कम हो जाते हैं, that is हो जाते हैं 20, then हर किसी को कितनी मिलेंगी, कितनी स्वीट्स मिलेंगी हर चाइल्ड को? सो लेट इट एज x. ठीक है, सपोज x स्वीट्स मिलेंगी अगर फोर चिल्ड्रन, फोर चाइल्ड जो है वो, सॉरी 4 चिल्ड्रन जो है वो कम हो जाते हैं, तो क्या करेंगे? अगर डेफिनेटली एक बॉक्स है स्वीट का, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस देन दे विल गेट मोर स्वीट्स, और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो उनको कम स्वीट्स मिलेगी. सो इट्स इनवर्स प्रोपोर्शन. क्या करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते थे? ये लिखते थे 24/5 इज इक्वल टू 20/x, बट इट्स इनवर्स. तो इनवर्स में क्या करेंगे? हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं. 24 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x, क्योंकि इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन सेम होता है, मतलब 24 डिवाइड बाय x होगा और 20 डिवाइड बाय 5 होगा. तो इसका मतलब है 24 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x. इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सो यहां से 20 डिवाइड कर देंगे. 24 multiply 5 upon 20 is equal to x. So here we can get the value of x, that is 6. That if the number of children are reduced by 4, then each child will get 6 number of sweets. कितनी sweets मिलेंगे उसको? 6. This was question number 4. Next, question number 5 is, a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. एक फार्मर के पास इनफ फूड है टू फीड 20 एनिमल्स. सो हमें एनिमल्स गिवन है. इन हिज कैटल फॉर 6 days एंड नंबर ऑफ डेज. 6 एनिमल्स, सॉरी 20 एनिमल्स को फीड कर, जितना उसके पास फार्मर के पास फूड है उसमें 20 एनिमल्स के लिए 6 days के लिए फूड है. ठीक है, उसके पास जितना फूड है फार्मर के लिए वो 20 एनिमल्स को 6 days तक चल सकता है. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन दिस केटल? अगर उसकी केटल में 10 और ऐड हो जाए, मतलब टोटल एनिमल्स 30 हो जाए. 10 और अगर कैटल्स, क्या उसमें एनिमल्स ऐड हो जाते हैं केटल में, तो टोटल एनिमल्स हो गए 30. तो फूड कितने दिन तक चलेगा? तो सेम फूड की, जो फूड की क्वांटिटी है दैट इज सेम. क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ कैटल्स, एनिमल्स बढ़ गए हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डेज. सो डेफिनेटली इट विल बी इनवर्स, क्योंकि अगर एनिमल्स ज्यादा होंगे तो फूड कम दिन तक चलेगा, और अगर एनिमल्स कम होंगे तो फूड ज्यादा दिन तक चलेगा. सो डायरेक्ट के लिए क्या करते हैं? 20 मल्टीप्लाई, सॉरी इनवर्स के लिए, इनवर्स के लिए क्या करते हैं? 20 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई x. 30 डिवाइड कर देंगे. 20 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 30 इज इक्वल टू x. कैंसिल कर दो. x इज इक्वल टू 4. सो नंबर ऑफ कैटल्स, नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 4 की अगर 30 10 और ऐड हो जाती हैं तो वही फूड 4 days तक चलेगा 6 की बजाय. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. A contractor estimates that 3 persons could rewire Jaswinder's house in 4 days. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट लगाता है दैट जो पर्सन्स हैं, नाउ वी हैव गिवन द नंबर ऑफ पर्सन्स एंड द नंबर ऑफ डेज, कि अगर 3 पर्सन्स हैं तो वो एक घर में, एक हाउस में वो वायरिंग करते हैं 4 days में. ठीक है, एक घर में 3 persons 4 days में वायरिंग करते हैं. इफ he uses 4 person instead of 3, अगर 4 persons यूज किए जाए 3 के प्लेस पे, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब? तो कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में? एंड आई टुक इट एज x. Suppose x days are required to complete the job when the number of persons are 4. So फिर से अगर ज्यादा पर्सन्स हैं तो कम दिन में काम कर देंगे, कम पर्सन्स हैं तो ज्यादा टाइम लगाएंगे काम करने में. सो इट्स इनवर्स. इनवर्स में क्या करते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई. 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x.
To find it out, 3 multiply 4 divided by 4 is equal to x, implies x is equal to 3. So if the number of persons are 4, then the days will be required 3, right? Next question, question number 7 is, a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. Okay, now here we have given boxes and bottles in that box. अगर 20 एक batch of bottles हैं वो packed in 25 boxes. Boxes अगर 25 हैं then the bottles are packed in एक box में bottles आती हैं in one box, that is 12. अगर 25 boxes हैं तो सॉरी इट्स 12, तो आपके पास एक बॉक्स में जो बॉटल आती है वो 12 है. इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, उतना ही बॉटल्स हैं, तो अगर वो 20 बॉटल्स एक बॉक्स में 20 बॉटल्स पैक करते हैं, देन हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी फिल्ड, तो कितने बॉक्सेस फिल होंगे आपको ये बताना है. ठीक है, अगर 20 बॉटल्स पैक्ड होती हैं तो बॉक्सेस में लेट दिस बी विल बी एज x. ओके, तो 25 बॉक्सेस हैं तो एक बॉटल में एक बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं, और आपको बताना है कि अगर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स फिल की जाती हैं तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए होंगे. ठीक है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ बॉक्सेस ज्यादा हैं तो उसमें एक एक में कम बॉटल्स आएंगी, नंबर ऑफ बॉक्सेस कम है तो एक बॉक्स में ज्यादा बॉटल्स होंगी. तो इनवर्स हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 20. डिवाइड कर दो, 25 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू x. कैंसिल कर दो, 15. This implies 15 boxes will be required if we fill 20 bottles in one box, right? Next, question number 8 is, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. Number of articles same है, machines given है 42. Then अगर machines 42 हैं तो कितने डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, आर्टिकल्स बन रहे हैं 63 डेज में. सो हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, आपको बताना है कितनी मशीन्स चाहिए होंगी टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज. अगर उन्हीं आर्टिकल्स को 54 डेज में कंप्लीट करना हो, मतलब कम टाइम में कंप्लीट करना हो, तो मशीन्स ज्यादा चाहिए होंगी. सो अगेन इट्स इन वर्ड्स, अप्लाई कर दो, 42 इंटू 63 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 54. 54 डिवाइड कर देंगे is equal to x. So from here you will get the number of machines to produce the same number of articles in 54 days. Next question 9. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. So here we have given time 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. That means you have given here time and speed. So car takes 2 hours, time in hours and speed in kilometer per hour. Okay, then time here we have given 2 hours, then the speed is 60 kilometer per hour, right? The unit जो है वो सेम होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि टाइम और वो उसमें सेम होना चाहिए. लाइक ये आर में है तो ये भी किलोमीटर पर आवर में है. हाँ, बस हमारे पास ये चीज ऐसा नहीं है कि अगर एक डिस्टेंस मीटर में है दूसरा किलोमीटर में है, दैट शुड बी सेम. आपकी इस अकॉर्डिंग यूनिट सेम होनी चाहिए. ठीक है, देन क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. अगर कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो कितना टाइम लगेगा. सो डेफिनेटली अगर कार ने अपनी स्पीड इंक्रीज की है तो टाइम कम लगेगा. सो इट विल बी इनवर्स. डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 80. 80 डिवाइड कर दो,
2 multiply 60 divide by 80 is equal to x. कैंसिल कर दो, 3/2. X is equal to 3/2, that is 1.5 hours. 1.5 hours हो जाएंगे. You can change into minutes also, right? Next question is question number 10. Here, two persons could fit new windows in a house in 3 days. It's mentioned here कि जो two persons हैं, that means we have given persons, two persons fit new windows, new window को fit करते हैं in 3 days. Days are given 3. ठीक है? Then you are to give your answer. First and second part, two parts are given here. In first part, they are asking one of the person fell ill. ठीक है? Before the work started, how long would the job take now? अगर एक person ill हो गया, मतलब एक कम हो गया, एक रह गया, तो कितना टाइम लगेगा काम को complete होने में? ठीक है? Let's take it as X. सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे. अगर आपको 1 डे में काम कंप्लीट करना है तो आपको कितने पर्सन्स चाहिए होंगे. एक तो आपको पूछा कि अगर एक पर्सन इल हो जाए, ठीक है, तो एक लेफ्ट रह गया तो कितने डेज में काम कंप्लीट होगा. अगर उसको एक पर्सन काम, पूरे काम को एक पर्सन करता है, और आपको ये बताना है कि अगर आपको काम को एक दिन में कंप्लीट करना है तो आपको कितने पर्सन्स चाहिए होंगे. सो आई लेट इट हियर number of days as x and persons as y. तो डेफिनेटली पर्सन ज्यादा है तो काम कम टाइम में होगा, और अगर पर्सन्स कम है तो काम जल्दी हो जाएगा, सॉरी ज्यादा टाइम मिलेगा अगर पर्सन्स कम है तो. ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे. 2 multiply 3 इज इक्वल टू 1 multiply x. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6. इसका मतलब अगर एक पर्सन है तो उस काम को 6 डेज में कंप्लीट करेगा. सिमिलरली y को फाइंड आउट करने के लिए 2 multiply 3 इज इक्वल टू y multiply 1. सेम, तो y की वैल्यू भी 6 आ गई. दैट मीन्स कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एक दिन में काम कंप्लीट करना है तो पर्सन्स कितने चाहिए, 6. इफ यू वांट टू कंप्लीट द वर्क इन 1 डे देन यू नीड द पर्सन्स 6, राइट. देन द लास्ट क्वेश्चन 11th इज a school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. ठीक है, here you have given periods and duration, number of periods and duration. ठीक है, if the number of आपका जो स्कूल आवर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं 6 hours 7 hours. सो उसी में ही अगर नंबर ऑफ पीरियड्स 8 हैं देन each period requires 45 minutes. तो हर एक पीरियड के 45 minutes होते हैं. How long would each period be if the school has 9 periods a day? अगर हम उन्हीं टाइम को 9 periods में शिफ्ट कर दें तो डेफिनेटली हमें टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा. अब एक पीरियड के लिए टाइम कम हो जाएगा, तो आपको वो नंबर ऑफ टाइम फाइंड आउट करना है. एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स आर टू बी सेम. नंबर ऑफ स्कूल्स आर सेम है, चाहे 6 चाहे 7. आपको बताना है कि अगर 8 पीरियड्स लगाते हैं तो 40-45 मिनट्स का आता है. ठीक है, अगर 9 पीरियड्स करते हैं तो कितने मिनट्स का होगा. तो डेफिनेटली अगर हम नंबर ऑफ पीरियड बढ़ा रहे हैं, हम एक पीरियड उसमें एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें वहां पे टाइम लिमिट कम करनी पड़ेगी. सो डेफिनेटली इट्स इनवर्स. इनवर्स में क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई. 8 multiply 45 is equal to 9 multiply x. ठीक है, 9 से डिवाइड कर देंगे. 8 multiply 45 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू x. ठीक है, कितना हो गया, x इज इक्वल टू 40. इसका मतलब अगर पीरियड्स 9 करते हैं तो जो ड्यूरेशन है पीरियड की उसको 5 मिनट्स के लिए श्रिंक करना पड़ेगा. इट विल बी ऑफ 45 मिनट्स, सॉरी 40 minutes. This was exercise 13.2 and hence your chapter is completed here.